Are you able to see this image? This is Yes, ma'am. okay. So this is your new chapter. How do organisms reproduce? We have introduced a bit, we have just discussed that why the organisms reproduce. So in response to that question, you only answered that organism reproduce to maintain their own species or to continue their own species on earth, and then it also have a scope of evolution. That means to um, create new kind of species on the earth. That is evolution. So with reproduction only, evolution is related. Then later on, do organism create exact copies? This was discussed, that do the organism create exact copies or not. So in this paragraph, it was discussed that DNA is the blueprint of life. Means the organism's body design depends on its DNA. All the characters of any organisms is coded by the DNA of that organism. So the DNA, we know that from starting we are studying that DNA is present in the organelle named as nucleus. So is what it is written in the first paragraph, that nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules. So this line states that deoxyribonucleic acid, that means DNA molecules, have the genetic information. And this is only the heredity information which is passed from one generation to next generation. And DNA is the source of information that is required for making proteins. Okay? So, अगर इस पैराग्राफ के हम फिफ्थ लाइन पढ़ रहे हैं, अगर हम पैराग्राफ का फिफ्थ लाइन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस of a cell contain information for inheritance of features from parents to next offspring in the form of DNA molecules. तो क्रोमोसोम्स डीएनए मॉलिक्यूल्स कहो या क्रोमोसोम कहो, जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं सेल के, वो पास किए जाते हैं दूसरी जनरेशन को. तो डीएनए ही वो इंफॉर्मेशन है. देन it is there, the DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made, and different proteins will eventually lead to altered body design. तो इस लाइन में ये बोला है कि इंफॉर्मेशन, अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन कैसे भी थोड़ी बहुत भी चेंज हुई तो उससे बनने वाले प्रोटीन्स भी बदल जाएंगे, और डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स डिफरेंट तरह की बॉडी डिजाइंस बनाएंगे. यानी बॉडी डिजाइन में, कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाएगा. जैसे अगर हम किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी एक तरह के क्रॉप के फील्ड में जाएं, और मान लो हम कॉर्न के फील्ड में जा रहे हैं, मेज के फील्ड में जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे भुट्टे लगे हुए हैं, तो वो जो मक्का या भुट्टा जो लगे हुए हैं, वो हर एक पौधा एक दूसरे से अलग अलग होगा. जबकि उसको जब बोया है तो वो एक ही सेट ऑफ सीड से बोया है. स्टिल उस सारे वैरायटी में, उस सारे मक्के के बीजों में जो होगी वो अलग अलग शेप की, अलग अलग साइजेस की, अलग अलग फॉर्म की प्लांट हमें उस खेत में, एक ही खेत में देखने को मिलेगी. तो यही होते हैं कि डीएनए में, हर प्लांट के डीएनए में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से उनके प्रोटीन्स अलग तरीके के बने हैं, जिस वजह से उनका शेप और साइज सब डिफरेंट है और बॉडी डिजाइन डिफरेंट है. तो यही बात ये कह रहे हैं कि डीएनए में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है, उसकी वजह से बॉडी डिजाइन डिफरेंट होती है. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA copy. तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन के लिए जो चाहिए, बहुत जरूरी चीज जो चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, डीएनए की कॉपी करना जरूरी है. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड देयर कॉपीज ऑफ डीएनए. सेल्स जैसे बाकी केमिकल रिएक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है,
और बाकी केमिकल रिएक्शन है। वैसे ही डीएनए बनाने के भी कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे पेरेंट का डीएनए डबल हो जाता है और 2 डॉटर डीएनए बनाता है। This creates 2 copies of DNA in a reproducing cell. They will need to be separated from each other. और ये डीएनए एक दूसरे से अलग किया जाता है, keeping one copy of DNA in original cell and simply pushing the other one out would not work. और फिर ये बोला है कि एक कॉपी को ओरिजिनल सेल में रख लेना और दूसरे को दूसरे सेल में पुश कर देना सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसका apparatus भी चाहिए, cellular apparatus. It also needs, that copy of DNA also needs cellular apparatus, because अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज की बात हो रही है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस. क्योंकि सिंपली अगर नए सेल में या डॉटर सेल में सिर्फ डीएनए आ जाएगा और बाकी एपरेटस नहीं आएंगे, यानी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं आएंगी, साइटोप्लाज्म नहीं आएगा, तो वो लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगी, सेल डाई हो जाएगा. देयरफॉर डीएनए कॉपिंग के साथ साथ एडिशनल सेलुलर एपरेटस भी बनाना पड़ता है, and then the DNA copy separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to 2 cells. तो जैसे ही दूसरा सेल भी पहले सेल पेरेंट सेल से एडिशनल सेलुलर एपरेटस पा लेता है, डीएनए की कॉपी भी मिल जाती है, तो इस तरीके से 2 अलग अलग सेपरेट सेल डिवाइड हो जाते हैं और 2 नए सेल बन जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन हो जाता है एट सेलुलर लेवल. तो इसमें दोनों काम होने जरूरी हैं. What are the 2 things which need to be completed? These 2 things are, first, the DNA should copy itself. Second, the cellular apparatus should also double in amount, and the dividing cells should distribute the materials within the cell equally to daughter cells, involving DNA as well as the cell organelles. Now coming to next paragraph, these 2 cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? ये दोनों जो cells बने हैं ये similar तो हैं, पर absolutely identical नहीं होंगे, exact clone नहीं होंगे. क्यों ऐसा है? अगर यही क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आ जाए कि the 2 cells which are formed by cell division, are those cells absolutely identical or not? तो आप कैसे आंसर लिखोगे? तो आंसर में ये आंसर बुक में ही दिया हुआ है कि आंसर टू दिस क्वेश्चन मींस कितना एक्यूरेटली कॉपी हुआ है डीएनए, कितने एक्यूरेटली रिएक्शंस हुए हैं. तो इसमें फिर आगे भी बताया, नो बायोकेमिकल रिएक्शंस इज एब्सोल्युटली रिलायबल, यानी कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता. हर बायोकेमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ एरर्स होते ही हैं. मैंने बताया था इसका रीजन, इन्वायरमेंट क्योंकि हमेशा हमारे चारों तरफ फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए रिएक्शंस में भी चेंजेस होते रहते हैं. Therefore, it is only to be expected that the process of copying of the DNA will have some variation each time. तो एक्सपेक्ट करना सिंपल है कि डीएनए जब जितनी बार भी कॉपी होगा उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हर बार आएंगे. एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर, जिसकी वजह से डीएनए जो कॉपी जनरेट होगी हर बार सेल डिवीजन में वो थोड़ी बहुत सिमिलर होगी पेरेंट सेल के, पर एग्जैक्टली कह सकते हैं क्लोन नहीं होगी, आइडेंटिकल नहीं होगी. Some of these variations might be so drastic. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि अगर ये चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाएं, अभी तो थोड़े बहुत चेंजेस की बात कर रहे हैं कि सिमिलर होगा ये बोल रहे हैं, बट अगर ये बोला जाए कि चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे तब क्या होगा? तो इफ चेंजेस आर वेरी वी कैन से लार्ज और ड्रास्टिक, सडनली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए में वेरिएशन आ गए, तो क्या होगा? So that is written that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. तो जो नया डीएनए है वो उस सेलुलर एपरेटस के साथ काम नहीं कर पाएगा जो जिसके अंदर वो आया है. Such a newborn cell will simply die, और ऐसा सेल मर जाएगा. On the other hand, there could be still be many other variations in the DNA copy. और दूसरी तरफ
बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं डीएनए कॉपीज में दैट लीड टू सच ड्रास्टिक आउटकम। यानी कि हम यही बात कर रहे हैं कि लार्ज लेवल पे अगर डीएनए में चेंज आया, तो अगर लार्ज लेवल पे डीएनए में चेंज आया यानी कि जैसे कि क्रोमोसोम की पूरा एक क्रोमोसोम ही लॉस्ट हो गया, या पूरा एक जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात यहाँ पे हो रही है, जैसे हमारी अगर बात करें तो किसी गैमेट में अगर 23 पेयर की जगह 22 ही रह गए और 46 क्रोमोसोम नहीं बन पाए, 44 रह गए या 45 रह गए, एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो उससे क्या होगा, जो न्यू बॉर्न है उसकी डेथ भी हो सकती है, वो ग्रो होता होता मिसकैरेज भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या अगर वो बर्थ भी ले लेता है तो दैट पर्सन कैन सफर फ्रॉम एनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के साथ वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। एक प्रॉब्लम होती है डाउन सिंड्रोम की, जिसमें एक क्रोमोसोम कम होता है इंडिविजुअल में, और भी सिंड्रोम्स हैं जिसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरीके से बताया गया है कि या तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन इंडिविजुअल्स को, या तो वो इंडिविजुअल्स मर भी सकते हैं, बर्थ जन्म से पहले भी मर सकते हैं। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डीएनए कॉपी में ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो सेल्स कैन डाई। Thus the surviving cells are अब जो द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सब्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा लेवल पे जब वेरिएशंस नहीं होते, थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, तो सरवाइव कर जाते हैं सेल्स, और पर एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। और यही टेंडेंसी वेरिएशन की एवोल्यूशन का बेसिस है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया है, हेरिडिटी और इवोल्यूशन में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस यस मैम। अच्छा मैम मुझे डाउट है। हाँ बोलो। मैम आपने वो वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना मैम, डीएनए की कॉपीज बनती हैं दो। मैम मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ यही बोल रहे हैं कि डीएनए की जब कॉपी बनती है वो होना जरूरी है, पहली बात तो। और जब डीएनए की कॉपी बनके जब सेल डिवाइड हो रहा है, ये पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि डीएनए की कॉपी को पुश कर मैम देने इसका मुझे मैकेनिज्म समझ नहीं आया, मतलब कब कॉपी बनेगी और फिर वो डीएनए कैसे। की कॉपी बनती है जब सेल डिवाइड होने वाला था, उससे पहले बनती है। ये सेल की एक साइकिल होती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट आप सिंपली ये समझ सकते हो कि whenever cell will divide, it will have that first step is the DNA copying, that it copies its DNA, and then Is next, it simply dividing or it is done in the reproduction or else? yes, in the process of reproduction, the cell, simply they are telling about at the cellular level, जैसे यहाँ पे बाइनरी फिजन की बात करो, ये भी आपको पढ़ना है टाइप्स ए सेक्सुअल में। Yes. तो ये पेरेंट अमीबा है, तो ये अपना डीएनए भी डबल करेगा जो इसके न्यूक्लियस में होगा, इसका साइटोप्लाज्म, इसके ऑर्गेनेली, सब चीज ये डबल करेगा, और जब डिवाइड होते वक्त फरो बनाएगा, एंड देन इट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली द कंटेंट्स। कंटेंट यही बात ये कह रहा है कि सिर्फ अगर ऐसा डीएनए मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते, सिर्फ डीएनए डीएनए की एक कॉपी भेज देते सेल में और इक्वली डिवाइड नहीं करते सेल को, सेल एपरेटस को इक्वली डिवाइड नहीं करते, तो जो नए सेल्स होते हैं डॉटर सेल्स, उसमें से एक सेल मर जाता, क्योंकि उसमें सिर्फ डीएनए पहुंचा है, बाकी एपरेटस नहीं पहुंचे। तो इस वजह से इक्वल डिवीजन जरूरी है, अमीबा का डॉटर सेल्स में इक्वल डिवीजन जरूरी है। देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का जो फरो, येलो कलर का जो फरो है, जब डिवीजन Yes, हो ma'am. रहा है, तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है प्रॉपर, और साइटोप्लाज्म भी दोनों जगह इक्वली जा रहा है। तो इसीलिए बोला है कि सेल एपरेटस भी और डीएनए भी दोनों इक्वली डिवाइड होना जरूरी है। इतना सा मैम पॉइंट। ऐसा ह्यूमन बींग्स में थोड़ी ना होता है, या फिर ऐसे ही है? ह्यूमन बींग्स में गैमेट्स के थ्रू होता है, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन ओके सेक्सुअल है, तो इस वजह से। मैम, हियर आई वाज कंफ्यूज, मुझे लगा कि कुछ ह्यूमंस में ऐसा है। नहीं, ह्यूमंस में नहीं है। ओके मैम। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक है
कौन सा पेज है, मैं ये देख नहीं पा रही। नेक्स्ट पेज इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब जो पैराग्राफ है वो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन है। Importance of variation में population of organism fill well defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वेल डिफाइंड हैबिटेट्स में या नीशेस को फिल करती है इकोसिस्टम में, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, अपनी एबिलिटी, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को यूज करते हुए। ये एक सिंपल सी लाइन है, बट इसमें दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। एक नीश वर्ड, NICHES, और एक इकोसिस्टम। तो इसमें ये दो वर्ड्स, नीशेस का मतलब होता है स्पेशल एबिलिटी और स्पेसिफिक, वी कैन से पोटेंशियल of any organism, specific potential, specific role of any organism। जैसे हर एक इंडिविजुअल का कोई रोल होता है। अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात भी करें तो अलग अलग प्रोफेशंस के लोग होते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा रोल है कि आपको आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, आपका सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए। तो आई एम एन एजुकेटर, तो एज एन एजुकेटर तो आई हैव टू गिव यू गुड लर्निंग। So that is my role in the society. You are student, so your role is to get that knowledge, to understand the things, so that you can also later on become adult and be useful for society in some or the other way। तो इस तरीके से इकोसिस्टम की बात जब करें, इकोसिस्टम एक नेचुरल सिस्टम है। इकोसिस्टम इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ फूड चेन, फूड वेब, जैसे नेचर में चल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है। हर्बीवोर्स कार्निवोर्स के थ्रू खाए जाते हैं। और इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स यानी एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेस आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, वो ही उसकी नीश कहलाती है। दैट इज नोन एज इट्स नीशेस। सो ऑर्गेनिज्म की आबादी, पॉपुलेशन, वेल डिफाइंड रोल्स को प्ले करती है इकोसिस्टम में, और अपनी एबिलिटी को यूज करती है रिप्रोडक्शन करने की, और अपना रोल प्ले करती रहती है, अपनी लाइफ कंटिन्यू करती रहती है। ये लाइन क्लियर हुई सबको? कि हर यस तरह की ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पर्टिकुलर हैबिटेट में अपना रोल प्ले करते हुए, अपनी एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन को यूज करते हुए अपने आप को मेंटेन करती है। अब आगे की लाइन लिखिए, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीश। और डीएनए ही ये काम करवा पाता है, यानी डीएनए मेंटेन रखना, डीएनए की कॉपी जो हो रही है रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो दूसरे नए ऑर्गेनिजम्स में जा रही है, वो जरूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स। बॉडी डिजाइन के फीचर्स मेंटेन रहे, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निश, और वो उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर रोल प्ले करने के लिए फिर काबिल बनाती रहती है। ये किसकी वजह से हुआ? सिंपली ड्यू टू कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग। डीएनए प्रॉपरली कॉपी हुआ और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए गया, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म मेंटेन कर पाया अपनी नीश को और यूज कर पाया दैट पर्टिकुलर नीश। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, और रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन और ऑफ स्पीशीज स्टेबल रही, वहां पर उस हैबिटेट में वो पॉपुलेशन, स्पीशीज की पॉपुलेशन स्टेबल रही। फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया कि इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट हाउ द रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी से रिप्रोडक्शन कैसे रिलेटेड है। और दूसरा ये बन सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए कॉपी करने की इम्पोर्टेंस क्या है। दोनों का सेम आंसर है कि पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म is maintained due to the consistency in the copying of DNA। ये पॉपुलेशन स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए डीएनए की कॉपी होना जरूरी है, और डीएनए की कॉपी की वजह से ही, प्रॉपर कॉपी की वजह से ऑर्गेनिज्म एक जब अपना डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास करते हैं
तो वो अपने सारी प्रॉपर्टीज नए ऑर्गेनिज्म को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी डिजाइन फीचर्स मेंटेन कर पाते हैं और अपनी पर्टिकुलर नीश को यूज कर पाते हैं, अपने पर्टिकुलर रोल को प्ले कर पाते हैं. जैसे कि elephant will only give rise to baby elephant, and tiger will give rise to baby cubs of the tiger. So each type of organism is going to produce their own kinds. So and their role in the ecosystem as predator or as a herbivore will be maintained. ठीक है, समझ में आई? मैम एक बार निशीज की डिफाइन फिर से कह दीजिए Niches प्लीज. means होता है the role of the organism in ecosystem. What role any organism is playing in an ecosystem? Because ecosystem में जो बायोटिक रिसोर्सेज है उनका कुछ रोल है. जैसे प्लांट्स का क्या रोल है? दे आर एक्टिंग एज प्रोड्यूसर्स. हर्बीवोर्स का क्या रोल है? कि दे आर एक्टिंग एज कंज्यूमर्स. कार्निवोर्स भी कंज्यूमर है. Then they depend on plants for their herbivores directly depend on plant and carnivores depend on herbivores. Then there is a balance. By their action there is a balance between ecosystem resources. सारे ecosystem resources balance पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि हम अगर बात करें कुछ टाइम पहले, अभी कल, शायद कल या परसों, मूवी है, जंगल बुक मूवी है और एक सिम्बा मूवी है, द लायन किंग. दोनों में बताया गया है कि प्रेडेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जंगल को बचाने के लिए, और ह्यूमंस को भी अब मतलब एनिमल लाइफ को बचाना पड़ेगा. वो उन मूवीज का दोनों का एक तो नेचर से लव क्रिएट करना भी है लोगों के अंदर, और दूसरा है कि उसमें हर लाइफ की इम्पोर्टेंस है, जंगल के हर उसकी ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस होती है अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट बनाने के लिए भी. और हम लोगों की लाइफ भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम से रिलेटेड. अब कोरोना हुआ, कितना प्रॉब्लम हुआ, तो उससे हम लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई. तो इस वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे कोई रोल है. a particular function which the organism is playing is called its niche. वही फंक्शन को नीश कहा जाता है. ओके मैम, थैंक यू. अब उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ दिखा रखा है, बताया है however niches can change because of reasons beyond the control of the organism. niches बदल भी सकती हैं because of the any reasons beyond the control of organism. यानी कि ऑर्गेनिज्म उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और उसका रोल बदल भी जाए एनवायरमेंट की वजह से, बोल रहा है यहाँ पे. जैसे कि temperature on earth can go up or down, water levels can vary, or there could be meteorite hits. To think of a few examples के सडन इवेंट्स हो सकते हैं अर्थ पे. जैसे कि अभी हमने अपना एनवायरनमेंट के बारे में बात करी थी, वैसे ही ये बता रहा है कि टेम्परेचर अर्थ पे अप और डाउन हो सकता है. सब बोल रहे थे कि कोरोना की वजह से सब लोगों ने निकलना बाहर बंद कर दिया, पोल्यूशन कम हो गई है और क्लीन एनवायरनमेंट हो गया है, बट स्टिल इन्फेक्शन तो बढ़ता जा रहा है. इन्फेक्शन स्टिल कैसे ना कैसे स्प्रेड हो रहा है. और सब ये भी कह रहे थे जब मतलब गर्मियां ज्यादा तेज होंगी तो हो सकता है कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए. तो टेम्परेचर के अप डाउन होता रहता है और उससे बाकी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ भी इफेक्ट होती रहती है. उस पे इसीलिए इतना इफेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज ये वायरल डिजीज है. तो वायरस के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा अननेचुरल सा वो होता है, कोड होता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीन्स डिस्टर्ब. उसको डिस्टर्ब करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वैक्सीन ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है. तो उसका इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर कम पड़ता है. तो इसी वजह से टेम्परेचर इसमें बोल रहे हैं कि वैसे बाकी वायरस को छोड़कर बाकी सारे लाइफ के ऊपर, चाहे प्रोटोजोआ की लाइफ हो, चाहे बैक्टीरिया की हो, चाहे हम लोगों की हो, चाहे प्लांट लाइफ हो, उन पे टेम्परेचर का और अर्थ में बाकी चीजों का, जैसे पानी के लेवल का, मीटेरोइड्स अगर हिट करें तो उन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है. तो इफ यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से असर पड़ता है. ये एग्जाम्पल से समझाया है, इसको ध्यान से समझो. यहाँ से शुरू हो रहा है एग्जाम्पल. इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर suited to a particular niche and if the niche were drastically altered,
यानी कि एक पॉपुलेशन है मान लो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, जो पर्टिकुलर नीश में अपना रोल आराम से प्ले कर रही है और वहां पे बिल्कुल आराम से सूटेड है, और इफ द नीश वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, अगर उसका एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा सडनली बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज कर दिया जाए, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, उससे इतना ज्यादा चेंज हो भी सकता है कि वो वहां से बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाए, वाइप आउट हो जाए, इरेज हो जाए पूरी। इतना भी चेंज उसके एनवायरनमेंट में आने से द ऑर्गेनिज्म विल डाई। तो यहाँ पर ये बात करी गई है। तो हाउएवर इफ द वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, पर फिर दूसरा केस बताया है कि मान लो इस पॉपुलेशन में जो किसी पर्टिकुलर नीश को यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर फंक्शन प्ले कर रहे हैं किसी हैबिटेट में, और इन्वायरमेंट चेंज भी हुआ है, तो वहां पर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कुछ थोड़े बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर ऐसे म्यूटेशंस हैं जो उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचा रहे हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनके कैरेक्टर ऐसे हैं जो उनको सरवाइव कर पा रहे हैं, जिससे वो सरवाइव कर पा रहे हैं ऐसे हैबिटेट में। दस इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स, तो अगर के कोई पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ही हो, मान लो एग्जांपल कोई टेम्परेट वाटर का बैक्टीरिया हो। टेम्परेट वाटर क्या होते हैं? थोड़े से फ्रीजेड एरियाज वाले वाटर, मतलब जहां पर कम टेम्परेचर है, ठंड वाले इलाके। तो अगर वहां पर इस तरीके का है, और वहां पर टेम्परेट वाटर के बैक्टीरियाज हैं, और सडनली वहां पर ग्लोबल वार्मिंग हुई, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1 और 2 डिग्री का इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में उस वाटर में, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? ज्यादातर बैक्टीरिया डाई कर जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया उसी नेचर में अडेप्ट होने के लिए थे। ज्यादातर बैक्टीरिया ठंड में रहने वाले बैक्टीरिया थे, पर कुछ वेरिएंट्स, कुछ ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होंगे जो जिनमें ऐसी जीन्स होंगी जो हीट को भी सरवाइव कर जाएंगी, जो 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी आराम से, उनमें कोई फर्क नहीं आया, वो फिर भी ग्रो होते रहे। तो इन वेरिएशंस का एडवांटेज मिला उन बैक्टीरियाज को, उनके अंदर जो म्यूटेशन थी, उनके अंदर जो चेंज जीन थी, तो उनसे वो ग्रो हो पाए। तो जैसे ही टेम्परेट वाटर में ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखा, वो ग्रो हो पाए, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, तो इसीलिए वेरिएशन यूजफुल हुए उनके सर्वाइवल के लिए ऑफ द स्पीशीज ओवर द टाइम। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन फॉर द सर्वाइवल। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, और नीचे वाले पैराग्राफ में बताया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस इन डीएनए। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए कॉपी की क्या इम्पोर्टेंस है और डीएनए वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है। ये क्वेश्चन भी हैं आगे यहीं पे ही दिए हुए हैं, नीचे ही ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। एंड दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरे इमेज में आपको और अच्छे से दिख सकता है। पता नहीं कहाँ है, आप में से किसी के पास एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करो, सेकंड वाला। हाउ द कुछ एवोल्यूशन से रिलेटेड है दैट क्वेश्चन। इफ एनीबडी हैज द एनसीईआरटी कैन टेल मी दैट क्वेश्चन, बिकॉज इस इमेज में तो ये कट हो गया है। Ma'am, the question is, why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन इसमें है व्हाई द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली टू इंडिविजुअल। तो इसमें पूछ रहा है, जो सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वेरिएशन कैसे हेल्पफुल होते हैं, वही इसका आंसर है, बट थोड़ा सा इसमें और ऐड करना है कि स्पीशीज का कॉन्सेप्ट बताना है। व्हाट इज स्पीशीज, तो पहले ये पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
that have maximum similarity and among each other and that interbreed with each other. ऐसे ग्रुप हैं ऑर्गेनिज्म का, ऐसा ग्रुप है स्पीशीज जिसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं एंड वो आपस में ब्रीडिंग भी कर सकते हैं. तो इस तरह के ग्रुप को स्पीशीज कहते हैं. जैसे हम ह्यूमन स्पीशीज हैं, अब चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, कोई भी हो, अर्थ पे जो हमारी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ह्यूमन कहलाएंगे, जो हमारे जैसे होंगे, जिनमें हमारे जैसे फीचर्स होंगे, तो वो स्पीशी ह्यूमन स्पीशीज कहलाएंगे. और दूसरा, जैसे दूसरे हमसे हमारे जो कह सकते हैं क्लोजेस्ट रिलेटिव्स बोल सकते हैं, जो चिंपैंजीज का ग्रुप है, ओरंगुटान्स, अलग अलग तरीके के एप, ठीक है, गिबन. दूसरे स्पीशीज है मंकीज के, डिफरेंट डिफरेंट मंकीज के स्पीशीज. देन उससे दूसरा, अगर दूसरे मैमल्स पे जाएंगे तो टाइगर एक अलग तरीके की स्पीशीज है, ठीक है. और इस पैराग्राफ में हमने जो पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें हमने बैक्टीरिया की स्पीशीज के बारे में बात की, ठीक है, कि ऐसे पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करी. लास्ट की 4 लाइन में लिखा हुआ है कि if there were a population of bacteria living in temperate water and if water temperature increased by global warming, most of the bacteria would die but few variants resistant to heat would survive and grow further. So variation is thus useful for the survival of species over time. यही इसका आंसर है कि इसमें भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करी गई है. तो उस पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया में स्पीशीज की बात करी गई है. क्योंकि पॉपुलेशन भी क्या होती है, ग्रुप, वी कैन से टोटल नंबर ऑफ सेम मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज को पॉपुलेशन कहते हैं, कि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के टोटल नंबर. जैसे इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है, सारे इंडियंस को अगर हम इंडिया के एरिया में जो रह रहे हैं इंडियंस को टोटल करेंगे तो वो इंडियन पॉपुलेशन बन जाएगी. तो इसी तरह से यहाँ पर भी बोला इफ देयर वाला पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब सेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं जो टेम्परेट वाटर में ग्रो कर रहे हैं. तो जैसे ही वहां का पानी का टेम्परेचर बदला, थोड़ा सा गर्म हो गया पानी, तो फिर वहां पे क्या हुआ, ज्यादातर बैक्टीरिया तो मर गई, कि ज्यादातर बैक्टीरिया उसी टेम्परेचर में अडेप्ट होने के लिए थे. बट क्योंकि हर बार रिप्रोडक्शन के वक्त कोई ना कोई डीएनए में चेंज आता रहा होगा, तो कुछ ऐसे वेरिएंट जरूर होंगे जिनके अंदर ऐसी जीन्स होंगी जो ऐसी प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि गर्म में भी टॉलरेट कर सकते हैं. तो इसी वजह से उनके वेरिएशन की वजह से वो सरवाइव कर पाए और वो वाले बैक्टीरिया जिंदा रहे ग्लोबल वार्मिंग में भी, और दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड दे आर एबल टू मेंटेन देयर स्पीशीज ओवर टाइम. तो ये इसका आंसर रहेगा. और ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग का, कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट. डीएनए ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और डीएनए ही यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, इससे पहले वाले पैराग्राफ में, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर. कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना डीएनए के कॉपी का ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, उसी से ही बॉडी डिजाइन के फीचर मेंटेन रहते हैं. दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू यूज पर्टिकुलर निश, और उससे ही ऑर्गेनिज्म अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाता है, और रिप्रोडक्शन इसी वजह से लिंक होती है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज से, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डीएनए कॉपिंग. These two things are directly related. Reproduction and DNA copying is directly related. ठीक है, समझ में आए दोनों क्वेश्चन के आंसर्स किस तरीके से आपको करने हैं? Yes. तो आपको जब आप नोट्स भी बनाओगे तो आप इसमें इंट्रोडक्शन लिख के, इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ सिंपली रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म creates their own kind or bring into life their own kinds, young ones और offsprings. कैसे भी बोल सकते हो कि young ones को लाइफ में लाते हैं, offsprings, सारी चीजों का मतलब एक ही होता है. और parent organism produces daughter organisms, ऐसे भी बोल सकते हो. Then बताना है importance of reproduction, that what are the importance, why do organism reproduce. तो उसमें 2 पॉइंट देने हैं कि for continuing the species on earth.
पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए, सेकंड फॉर द स्कोप ऑफ एवोल्यूशन, फॉर द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन. So because every time the organism reproduce, variation occurs and these variation leads to evolution. तो इस तरह की हेडिंग बन जाएगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसे करके भी लिख सकते हो. ठीक है, पहले लिखी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, फिर लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर लिखा कि what is we can say what is DNA, means DNA का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दो, और what is importance of DNA. तो DNA की फुल फॉर्म दे दो, DNA के बारे में बता दो कि ये ब्लूप्रिंट है, क्रोमोसोम्स में मिलता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें मिलता है DNA, और DNA के पास क्या इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन है. देन आप बता दो कि DNA कॉपी होना, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख दो कि डीएनए भी डबल होता है, साइटोप्लाज्म भी डबल होता है, और वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. फिर आप आ जाओ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे और इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग पे, कि वेरिएशन क्यों जरूरी है और डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है. या तो आप इसको नोट्स में लिख लो, या जो क्वेश्चन है उनका आंसर में भी आप बता सकते हो. जो 2 क्वेश्चन लास्ट के हैं उनमें भी यही चीज आएगी वापस, तो आपकी मर्जी, या तो नोट्स में लिखो या तो क्वेश्चन में लिखो. आप दोबारा से इसको सेशन को ज्वाइन कर लेना, अभी ये एंड हो जाएगा, दोबारा से इसी आईडी पे और इस पे ज्वाइन कर लेना.